साथ. It was regarding useful phrases. So I want to kind of have a revision session for that today. So we will be doing, and tomorrow I won't be able to take the class. So I'll be taking your classes on Monday, right? So आज के लिए we'll do a session of only 30 minutes because I'm a little bit unwell today. So हम यूजफुल फ्रेजेस का थोड़ा रिविजन करेंगे एंड उसके बाद हम थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे आपके और मेरे बीच, बिकॉज मैं हमेशा इतने दिनों से बोल रही हूँ एंड यू ऑल आर लिसनिंग. सो आई वुड ऑल्सो लाइक ऑल ऑफ यू टू इंटरैक्ट विद मी. तो पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम यूजफुल फ्रेजेस का थोड़ा रिवाइज कर लेंगे. So when I take your name, you please unmute yourself, and then we'll have a conversation in English. You can say, you can speak however you like. It's okay. आपको proper English मतलब आपको जितना आता है आप उतना बोलने का try करो, because अगर आपको अपनी spoken English ठीक करनी है, all you have to do is practice. You can practice at home. You can practice with yourself in the mirror, as I have told you earlier, and also you can practice with me. कभी भी आप लोगों का मन हो, so you can have interactive sessions with me whenever you want. You just have to ask. हम उस दिन वो नहीं करेंगे and we just have a session with each other. So आज हम वही करेंगे. So मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे. जब मैं आपका नाम लूंगी, you have to unmute yourself and you will say few lines about yourself. I'll give an example. Like, my name is Manasvi Khanna. I'm from Amritsar. Study in this college, so you don't have to say the name of your college or wherever you live, etc., but just give few information about yourself. Like, I have two sisters. Like, I don't have two sisters, but I am a single child. But you can say about yourself कि आपके कितने siblings हैं. Siblings यानी कि आपके real भाई बहन. And give a little bit kind of an introduction about yourself, and don't be shy. Give yourself a chance, because अगर कोई भी आपको word बोलने में problem आ रही है, you can always ask me. Right? So is it understood? Just show me a thumbs up. No one? Thumbs up. Yes, ma'am. Please. Okay, it's only clear to her. Okay, so एक मैंने कर दिया है. बाकी, good evening, Zakia. How are you? Am I pronouncing your name right? Can you say it? How do you pronounce it? अपना नाम कैसे बोलते हो? Good evening, Dinesh. Good evening. अभी जो आ रहे हैं, how is everyone? So I'll repeat myself once again. आज हम कल स्टोरी टेलिंग वाला जो हम कर रहे थे, आज हम वो थोड़ा डिले कर रहे हैं. आज, हाँ जी. If you don't have anything to say right now, please mute yourself. मैं आपको जब बोलूँगी तब आप अपने आप को unmute करना, okay? So please, I'll mute yourself. Oh, so now I'm telling you कि आज हम थोड़ा interactive session रखते हैं. We'll talk to each other. I'll also get to know about you. You get to know about me. And after that, we'll have a revision session of the useful phrases lecture that we had on 2 days before. So, मैं अपनी introduction पहले देती हूँ. As I was giving before, like, my name is Manasvi Khanna. I don't have any siblings. That means I'm a single child. I am doing BA English honors from my college. I'm from Amritsar. And you can also tell, you can also tell what do you like. For me, I like reading. I like watching movies. I like going on walks. And just like that, मैं ये बता सकती हूँ, I also kind of मैं इतना ही बताऊंगी अपने बारे, because I'm just giving you an example. So आप लोग भी मुझे अपना ऐसे बता सकते हो. You can tell me whatever you like, and you have to speak in English because this is an English spoken class. यहाँ पे you are here to. My voice is low, but बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am, it's clear. Yes, ma'am. मैम थोड़ी स्लो है. अच्छा, तो आप लोग ना उस कमरे में चले जाओ जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन आता है, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो अब है ही. अब हम फेस टू फेस तो कर नहीं सकते, यही हमारा इशू है. तो हम अगर जूम पे मिल रहे हैं, आई वुड रियली लाइक कि आप लोग क्या कहते हैं, अपना थोड़ा उस कमरे में जाके बैठो जहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत आ रहा है. ओके जाकिया. So let's start with Shoaib Ali. Can you unmute yourself, please? And please make sure कि पीछे कोई शोर वगैरह ना हो, because obviously that will disrupt the decorum of the class.
So Shoaib, can you unmute yourself? Actually, ma'am, can we start with some other one because today is my first day. Okay. You Yeah. just have to introduce yourself. You just have to say a few lines about yourself because आज की class में we're only practicing the spoken English. I'm not teaching anything. Like मैं आज कुछ आगे इतना नहीं पढ़ा रही हूँ. You just have to give few lines about yourself. Yeah. Okay. So I'll give you my small introduction. Hello, guys. My name is Shravali. I'm from Lucknow, and I have worked with Flipkart as a system engineer. Don't be shy. Whatever you have in mind, you can say. You can say a few more lines about you because हम अगर आज spoken English की practice कर रहे हैं, so yeah. Yes, ma'am. But अभी क्या है कि थोड़ा You can पता tell us नहीं about है your कि hobbies. क्या है, बताना है. Yeah, continue please. I am listening. I am waiting. मैं ये बोल रहा था कि अभी थोड़ा दूसरे पर्सन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज अभी मुझे आइडिया भी नहीं है इतना कि क्या बताना है कैसे Okay, बताना है. if you So that want 2 minutes, you can write something down and then you can read it out to me. कोई issue नहीं है. You can take 2 minutes. If you want 2 minutes, तो please chat box में yes लिख दो. So I know अगर आप 2 minutes चाहिए, you can write it on a paper and then you can speak it out to me. Yes, Faizan? I introduce myself. Yeah, sure. Go ahead. First of all, my name is Faizan Hanzala. I am from Jharkhand. I want to say that my good manners that first of all I wake up at morning in 7 o'clock, and then I fresh. Then I fresh. After that, after that I go to coaching for competitive exams. Then I What kind of competitive exam can you tell me? like that Group D What NTPC exam Railway Group D Okay, NTPC. nice. Okay, that's very good. All the My best. and my favorite fruits like that apples, banana, papaya, etc. When you okay, just continue. So when you Uh, say your favorite fruit is don't say it apples because you eat apple, right? It's a singular thing. So that's why I'm here today. I correct you if you're not not saying it correctly. So when you introduce yourself, give tell about your name or like where are you from. You did it very perfectly actually. You did very correctly. But when you're talking about put something which is relevant to your introduction, right? जैसे कि आप क्या पढ़ाई करी जैसे आपने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले कहा इट वाज परफेक्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन. So इन चीजों के बाद don't go to your favorite fruit, go to what you actually like doing in free time. जैसे कि I मैडम like आप अपने मैम free time आपका में क्या आवाज करते बज रहा है. आपका आवाज रुक रहा है. हैं? अभी तक वो मेरा आवाज आ रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. क्लियर नहीं आ रहा है. आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है. So you have Yes, to ma'am. search in Little my bit room it's the that network connection issues. stable है. Ma'am, actually, Yeah. Hello, ma'am. this is Ma'am, you are not audible. Your voice is breaking. yes, ma'am. Your voice is This is the issue of Zoom. This is the issue of Zoom. The key issue. आपकी आवाज रुक रही मैम. Am I audible now? Tell me.
You can write a yes or no in the chat box because No, ma'am. Still you are I not don't know if I'm audible. audible or not. I don't know what's not happening. Now, so am I audible now? Am I audible? Please, yes. Problem बताओ भाई मैं audible हूँ कि नहीं? मैम अभी आवाज आ रही है पर बहुत कट कट के आ रही है। अभी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम उसका। अभी रुक रहा है आवाज। I'm trying to sort out. I'm trying to sort out issues, but let's see कब तक हो पाता है because I'm tired. Am I audible now? Yes, Yes, ma'am, but ma'am. not so clear. Yes, ma'am, but voice is not clear. मैम आपका साउंड नहीं आ रहा। ये आ रही है लोगों को? I hope नो मैम, नॉट क्लियर। आवाज अभी इम्प्रूव रहा है। I don't know आज क्या इशू आ रहा है मेरे साथ। Actually आज मेरी फैमिली में किसी का भी नेट नहीं चल रहा है, so we are quite Ma'am, now you are a काफी little हम लोग bit audible. परेशान हैं। Okay, मैं काफी Yes, माइक ma'am. के पास आके बोल रही हूँ ताकि Yes, ma'am, now you are audible. just wait a second ना, मैं हेडफोन लगा के देखती हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं?
पा रही हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, you're ma'am. audible. मैंने एक्चुअली अपने लगा लिए ताकि लोगों को बात आज पक्का। फिर भी थोड़ा थोड़ा कट रहा है मैम। नो मैम, वॉइस नॉट क्लियर। ये किसने कहा? Ma'am, you are audible, but मैम we can अभी भी understand what you वॉइस नहीं are आ रही saying. है। I'm really sorry, I don't know what क्या हो रहा है। मेरा पता नहीं Ma'am, क्या but your voice is आ रहा है। understand. Yes, ma'am. Ma'am, your Voice voice is not properly working. किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, सब प्रॉब्लम यही हो रही है ना। किसी को आवाज आ रही है, नहीं आ रही। हम तो पता नहीं क्या चल के बंद ही हो जा रही है। ओके, सो Ma'am, लेट्स फटाफट करते हैं ताकि हाँ मैम क्या रीस्टार्ट करें? आप लोग कह रहे हो मीट पर रीड कर लो। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस। हाँ जी, गणेश पूछना है आपने। आपके सवाल बड़े होते हैं। हाँ जी, पूछिए। आप लोग एक बार रीस्टार्ट कर लो, फिर हम पूछता हूँ। जस्ट रीस्टार्ट, लाइक जॉइन द लिंक अगेन। रीस्टार्ट ओके, अगेन? हाँ हाँ वही कह रही हूँ, रीस्टार्ट कर लो। आई Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, एवरीवन प्लीज जॉइन इन। Yes, ma'am. बाकी सबको आवाज आ रही? Yes, ma'am. Now it's clear. Yeah. परफेक्ट, आई होप ऐसे ही रहे। अच्छा, so we were talking about Faizan's introduction. Yeah. So Faizan, you were almost right, almost in the sense कि आप जब भी अपनी introduction दे रहे हो, at what kind of fruits do you like? यहाँ पे it's completely okay. Don't worry, you can share anything you want. But when you are professionally or even meeting someone new, try to introduce yourself in such a way कि उनसे उनका Ma'am, relatable हो। जैसे अपनी hobbies ma'am, बता रहे हो and you are telling them about what you are starting, आप आगे क्या करना चाहते हो। ओके, मैम क्योंकि मैं सेंटेंस मतलब जो जो जल्दी जल्दी आ रहा था इस वजह से वो मैं बोला। मुझे सेंटेंस सोचने में थोड़ा नो मतलब प्रॉब्लम। आई एम सेइंग यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप जैसे मर्जी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, यहाँ पे सब चलेगा। मैं बस आपको बता रही हूँ जब आप अगली बार किसी से मिलो, बिकॉज देखो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान। सो whenever you're trying to introduce yourself, you have to appear confident, because confident जिसके चेहरे पे दिख जाए ना, अगला उसी समय इम्प्रेस हो जाता है। सॉरी,
बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? सो उस इंप्रेशन को कायम रखने के लिए यू हैव टू अपीयर कॉन्फिडेंट। भले आप उस कॉन्फिडेंस में कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दो, इतना फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स फॉर एवरीवन टू अपीयर स्मार्ट एंड टू अपीयर इंटेलिजेंट। यू हैव टू शो द कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस कि आपको किसी के सामने बोलने से कोई डर नहीं। ठीक है, एक दो शब्द मुझसे गलत निकल गए तो क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ बोलेगा तो ना, कुछ हाथ होना जाएगा। नो, यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट Okay, में ma'am. आप, ठीक है ना? सो इट्स नॉट फॉर यू ओनली, आपके लिए, सबके लिए मैं यही कह रही हूँ। सो Yes, ma'am. लेट्स गो टू शिवा। आप बताओ मुझे अपने बारे, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ओके? जितनी भी, जैसे भी आती है, जो मर्जी। Yes, ma'am. स्टार्ट। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I'm Shivani Sharma, but my email ID as a Siva Sharma, Siva Singh. So it is showing as a Siva Singh. Okay, I'll call you Shivani from now onwards. Sorry for that. Yes, ma'am. No problem. Ma'am, I am from Korba, Chhattisgarh, but I am pursuing BTech third year. And ma'am, I am currently in Indore, MP, because I have an internship in Sachi dairy plant. So I am doing that. And my hobbies are reading books and some different types of stories, and Okay. and also searching a dairy related news and articles whenever I free. Speaking or not? Yes, ma'am. आपकी ना मुझे एकदम से आवाज कर दी थी, आपने बोलना बंद कर दिया था क्या? No, ma'am. आप बीच में बोल रहे थे Yes, ma'am. I was talking continuously. क्या? थोड़ा पॉज। ओके ओके ओके, नहीं बोल रहे थे मैम। हाँ हाँ ठीक है। नो, बस मैं कंफर्म कर रही थी, बिकॉज यू नो ये इंटरनेट है इतना बढ़िया, क्या करें। सो Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's all. yes, next I like to ask Khushbu. Khushbu, can you introduce yourself? It's okay, try करो। Yes, हाँ, yes, ma'am. Ma'am, my name is Khushbu. I am living Delhi. I live in Delhi. Yes, ma'am. और I am. No, सारी कुछ भी बोल दो। अपनी फेवरेट मूवी बता दो। मैम बट मैं तो मूवी Full देखती sentence। नहीं हूँ। फिर तो आप एक पूरी डिफरेंट कैटेगरी में आते हो। आप मूवीज नहीं देखते? No, ma'am. I did not expect today. Ma'am, but do you my like anything else, like reading or anything? yes, ma'am. My hobbies is reading और my interest is English में है, but आता नहीं है इतना, कोई इसलिए। बात नहीं, हाँ आता उतना बोल दो। Nobody is forcing you कि सब कुछ इंग्लिश में। But हाँ जी, well वैसे try. नहीं आपको say anything? Yes, No, ma'am. ma'am. ये just मुझे ना हंसी आ रही आप है। अनम्यूट कर लो, फिर अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लो। Present, please mute yourself. Thank you. Okay, आपको, अच्छा आप मुझे ये बताओ, जब आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हो तो आपको क्या फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है या प्रोनाउंसिएशन? मैम बोल नहीं पाते हम। समझ गए। देखो, हाँ। बोलने की प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, बोलने की प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट होगी जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे। यस मैम। यस मैम। आप ना काम किया करो, एक कोई भी ना आर्टिकल सर्च कर लो, गूगल पे जितनी भी न्यूज वगैरह आती है, ऐसे आती है, ट्राई करो Yes, कि आप ma'am. उसको इंग्लिश में रीड करो। मतलब कि वो इंग्लिश में लिखी होती है, तो काइंड ऑफ ट्राई टू रीड इट एवरी डे। मैं आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने को नहीं कह रही, रीड करने को नहीं कह रही। स्टार्टिंग की 5 लाइन 6 लाइन कम से कम 5 से 6 या 7 बार रिपीट करो, एंड देन ट्राई करो कि आप एक बार पूरे फ्लो में बोलो, ओनली वन टाइम, थोड़ा रेस्ट लेके। ओके मैम। अगेन से इट इन अ फ्लो, फिर देखो कि Okay, आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके मैम। सो Thank you, ma'am.
नो प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो आप में से किसी को भी डू ट्राई टू शेयर इट विद मी सो आई कैन मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इजियर फॉर मी टू ट्राई टू काइंड ऑफ टीच यू। Okay, ma'am. नेक्स्ट आई वुड, पहले कितने सारे लोग थे आपको याद है नहीं दोबारा, सो दैट्स ओके। जस्सी कौर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? Hello, ma'am. हेलो, Thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Jassi Kaur. I am from Pilibhit. I study in class 12th. My hobby is dancing and badminton. Now, my interest in English speaking. Yes. anything else, your hobbies kind of you want to add? Anything? नहीं और कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। You gave your introduction pretty well and I would say आपकी English speaking काफी अच्छी है. You have to practice a little bit more and you will be very good at it. You are good at it but you will be very very well in it. Okay? So आपने काफी अच्छे से अपने आप को introduce किया है and you came to me very confident. So keep up with that. अगर थोड़ा बहुत अगर कोई बीच में कि ना, मैं भी पहले जब इंग्लिश बोलती थी ना तो मैं भी ना बड़ा स्टैमर करती थी बीच में, लाइक मैं रेगुलर स्टैमरिंग नहीं करती, जैसे मेरे शब्द आधे मैं खाती नहीं हूँ, बट पहले जब मैं शुरुआत में थी, लाइक आई वाज इन, जब मैं 6 7 या 8 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी बोलने में। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आजकल कितने लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आती है। सो जो मैं आपको कह रही हूँ, जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आप अपनी क्या ये भी कर सकते हो एक्टिविटी की, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन सोचो कि क्या क्या आपको पसंद है, क्या क्या आपने किया है, कहाँ से आप कहाँ बड़े हुए हो, कितने आपके फैमिली में मेंबर्स हैं, कितने भाई बहन, ये सारे ना एक पेज पे इंग्लिश में लिखने का ट्राई करो। टेंस सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, बस अभी लिखो। फिर अगर आपका मन करे सो आप वो मुझे क्लास में आके दिखा सकते हो एंड आई विल सी कि आप लोगों ने उसकी फोटो मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हो एंड देन आई विल सी कि उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं, एंड इफ इट्स करेक्ट तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे पढ़ के वो सुनाओ। इज इट ओके? ये आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो। सो हाँ जी गणेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? गणेश कैन यू प्लीज, एक्चुअली आपका नाम भी भगवान जी वाला, तो आपको सिर्फ हम गणेश नहीं बुला सकते, तो गणेश जी बोलना पड़ता है। सो कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? वैसे तो आप रोज अनम्यूट कर देते हो और आज अब अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को, देख लो। गणेश कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ जी, हेलो आप मैम। मुझे अपने बारे में कुछ सुनाइए। हेलो, आप मुझे अपने बारे में कुछ इंग्लिश में सुनाइए, कुछ भी। My name is Ganesh. I am from UP. ओके, डोंट से यूपी, I से like उत्तर study. प्रदेश। आई लाइक टू मैं स्टडी। मतलब ओके, अभी हाँ जी, कंफर्टेबल नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब अभी कल से आ रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आइडिया नहीं है मैंने आपको मुझे क्या बोलना। कोई बात नहीं, मुझे कम से कम ये सुनना था कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है एंड इट्स क्वाइट गुड। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बोलना नहीं आता, आपको आता है, आप सीखोगे तो आराम से कर लो। एंड जो मैंने आपको बताया जी ना, वो चीज करनी है कि अपने बारे में लाइंस लिखो। आपका गणेश आई गेस कनेक्शन नहीं, ठीक नहीं, थोड़े दूसरे कमरे में जाके बैठो एक जहाँ बार पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पता लगे अभी कि का आया तो पूरा कैप्च नहीं कर पाया आपका वर्ड क्या बोले, अच्छा। मतलब सो अभी लेट था ना, इंटरनेट कनेक्ट हो गया। ओके, सो हेलो, आपको, हाँ जी हाँ जी, जब की बात आ रही बोल है, रहा हूँ कि मतलब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए जो बता रहे थे। जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी बताई है। जी अच्छा अच्छा, मैं बता देती हूँ, मैं आपको थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले मैं बात सबसे भी सुन लूँ। कौन रहता है? अरविंद, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I am Arvind from Delhi. I am a student of 12th. My hobbies is playing cricket and listening music. That's all. एंड
so no problem. So when you say I am, मैं 12th में पढ़ 12th standard, या तो आप 12th Yes. क्लास बोल सकते हो, बट बेटर है कि 12th स्टैंडर्ड बोल, अच्छा लगता है, ठीक है ना? Yes, जो स्टैंडर्ड वर्ड है ना, वो एक्चुअली अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो हम अपनी क्लास को बोलते हैं कि मैं 12th क्लास में नहीं हूँ, वो आप रेगुलर हिंदी वगैरह में बोलते हो तो वो 12th क्लास ठीक है, बट व्हेन यू टॉकिंग इन इंग्लिश you have to say I am in 12th standard. Okay? okay, ma'am. Thank you. Okay, next Aarti. Ma'am, now Aarti, I guess. are the siblings, including. Hello, can you hear me? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज क्या? Hello. या बोलो बोलो. Myself, Aarti. connection आज थोड़ा. हाँ जी. Then I am live in Dwarka. Then I have a 3 siblings, including me. My hobbies are reading books and listening music and cooking foods. Food, not food. Okay. My favorite place is Jaipur. Then thank you. Thank you. That was very nice. That was a very good introduction. Okay, so हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है. Yeah, you're right. So अब मेरे को, अब मैंने काफी सबका सुन लिया है. आप प्लीज आरती अपने आप को म्यूट कर लो. मैम मेरा कुछ क्वेश्चन है आज. हाँ जी. अभी पूछ आपको सकता हूँ? एक्टिविटी में समझा देती हूँ. क्वेश्चन था क्या कर सकते? हाँ जी पूछो. Ma'am, your कुछ voice. क्वेश्चन था तो पूछ सकता हूँ? ओके. Hello. One at a time please. या बोलो. मेरा कुछ क्वेश्चन था तो पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछो. ये बोल रहा था मैं, मतलब जैसे कोई फ्रेंड से बात करेंगे तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी सीख जाएंगे बात करने में कोई किसी से. तो ऐसा मतलब कोई पर्सन हो तो आपस में बात करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे. वो तो मैं आपने सही कहा बिल्कुल. इसमें जैसे आपका आपसे बताने में मतलब थोड़ा नर्वस फील हो रहा है. कोई बात नहीं, नर्वस होने की कोई बात नहीं. आपको कौन सा कोई देख रहा है, आपको सुन ही रहे हैं ना. आप आराम से बोलो. 2 लाइनें बोल, 2 लाइनें भी चलेगी. अच्छा अभी नहीं बोलनी. ओके. So let me आपको साथ में मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ and I'm going to tell you about the useful. So host has disabled the participant screen sharing. तो please उसको आप कर दो. I'm not able to share my screen. I'm not the host right now. So. Ma'am, your screen is not showing. हाँ जी. Screen show नहीं हो रहा मैम. हाँ मेरे को नहीं पता. अभी पता होगा. अब होगा 2 मिनट. मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या वाकई में 90 डेज में मतलब इंग्लिश में बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं? आप उसके हिसाब से अगर आप करो, ऐप के हिसाब से एंड YouTube चैनल के हिसाब से, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू. मैं आपको ये नहीं कह रही आप परफेक्ट हो जाओगे, बट इट्स अ गुड स्टार्ट. आपको काफी हद तक आ जाए. सो आई टेल यू टू बी अस फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. इतना 1 सेकंड देना.
अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। जी तो ये हमारे पास जो फ्रेजेस थे, आप लोग एक बार इसको पढ़ लो। मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो इसमें से, तो प्लीज टेल मी। ओके Zakia, you have not seen my recorded session on YouTube, but आप प्लीज क्या कहते हैं, YouTube पे जाके जो बाकी जो है सेशन उनको प्लीज जाके ट्राई करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। मेरा वाला शायद आ जाएगा। ओके, सो आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग इसको देखो। मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई लाइन आपको समझ नहीं आ रही है, सो प्लीज डू टेल मी। टेक 2 मिनट्स, आपको उसमें से कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो मुझे बताओ। मैम मेरा एक सेंटेंस है, हाँ जी बोलिए। मतलब आज मतलब मुझे एक सेंटेंस नहीं बनाने आ रहा है, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो। मतलब सेंटेंस ये है कि आज कितना बजे तक क्लास चलेगा ये। ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि आपने ये गेम खेली है मेरे साथ? ये नो मैम, मतलब मेरे दिमाग में आया सेंटेंस, तो मतलब हम सोच रहे थे तो नहीं बन रहा है, तो मतलब आपसे पूछने की ट्राई की। नो प्रॉब्लम। ये ना टाइमर हमें लेस देन 1 मिनट कर रहा है, सो जब ये एकदम बंद हो जाए तो प्लीज ज्वाइन अगेन, हम दोबारा करते हैं, फिर करेंगे। सो अब आप कह रहे हो कि ये क्लास कब तक एंड होगी, सो यू विल आस्क, एक्सक्यूज मी मैम, यू विल आस्क, बिकॉज कभी भी किसी सीनियर से बात करनी है, यू हैव टू टेक देयर परमिशन फर्स्ट। ओके, उनकी परमिशन पहले आपने लेनी है, एंड यू हैव टू से एक्सक्यूज मी मैम। उसके बाद जब आपको वो यस बोले, सो यू हैव टू आस्क, कैन यू टेल मी when this class is going to end, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो, एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू टेल मी when this session is going to finish। ठीक है? ओके मैम। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लाइक मी, आपका नेम या आई, कुछ भी आप कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू जॉइन दो सेंटेंसेस को जॉइन करने की कोशिश करो, राइट? जी जब लिखोगे उसको ज्वाइन करोगे तो ही आपका फिर ना वो सेंटेंस आपको प्रैक्टिस, तो देखो आपको करनी तो खुद पड़ेगी, कोई आपको आके ऐसे नहीं कर पाएगा, बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। मैम फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। एक सेकंड में तो मैम मतलब स्टार्ट कहाँ करें, नहीं समझ में आ रहा मुझे। स्टार्ट तो देखो हेलो। आपको सिंपल इंट्रोडक्शन से करना पड़ेगा कि सिंपल में मतलब तभी कैसे? जैसे कि देखो, आपको अपनी इंट्रोडक्शन, जैसे कि अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आप ठीक है ना, किस आप जैसे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप अभी क्या जी पढ़ रहे हैं, और आपके आगे फ्यूचर के क्या प्लान है, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे छोटे होते बोलते हैं ना, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। जी आपको अब पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, सीधा आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने के लिए कोई नहीं कह रहा, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है ना? ओके आप पहले अपने बारे में लिखो, फिर जी आप किसी और टॉपिक की तरफ जाना, फिर अपने आसपास की ना छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। जैसे सेब आपके पास पड़ा है, एप्पल के ऊपर 4 लाइनें लिख दी। जी कोई जी शेप है, स्क्वायर की शेप है, अब आपको स्क्वायर का तो पता ही है कि स्क्वायर इज द शेप, इट हैज 4 साइड्स, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये छोटे छोटी चीजों से लिखना शुरू करो, और आप लिख के प्रैक्टिस करो। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप नेक्स्ट डे आके मुझसे पूछो। ठीक है ना? ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब मैं जी आपको सेंटेंस बनाना तो नहीं सिखा सकती ना, ऐसे रोज हर रोज आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊं, वो तो पॉसिबल नहीं है। शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप ठीक लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, या आप इसको ये शब्द ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है ना? अच्छा, कल 10 सेंटेंस बनाकर मतलब बताएंगे आपको, कुछ ठीक रहेगा कि हाँ गलत? हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे बताओ, आप मुझे दिखाना, मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है कि नहीं। जी अच्छा, ये वाला हम टॉपिक, अभी आप मुझे किसी ने क्या पूछा था, फर्स्ट बॉक्स का लास्ट लाइन?
Yes, ma'am. Freshers for invitations. Okay, okay. It's phrases. Like Okay, that मैं इसमें ये sentence. word How about coming to the picnic at the football club? okay. ये उन्होंने बड़ा एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है. हाउ अबाउट कमिंग टू द पिकनिक एट द फुटबॉल क्लब. अच्छा, मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि जब हम किसी से सवाल पूछे, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरे इंसान को तब बहुत अच्छा लगता है जब आप उसकी चॉइस को एक्नॉलेज कर रहे हो. एक्नॉलेज यानी कि आप कंसिडर कर रहे हो कि आप ये नहीं कह रहे कि चल यार चलते हैं. नो, आप उनसे पूछ रहे हो. अगले को अच्छा लगता है कि हाँ, इसको भी मेरे टाइम का और मेरे कहते ना कि मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट है, तभी वो मुझसे आके पूछ रहा है. ये नहीं सिंपल मुझसे थोप नहीं रहा कि चल चलते हैं हम गेम खेलने, लेट्स गो, कहते ना लेट्स गो टू द पिकनिक एट द फुटबॉल क्लब. नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू आस्क समवन, टू आस्क समवन, बिकॉज उनको लगेगा कि आपको उनकी चॉइस की कोई परवाह नहीं है. आप सिर्फ खुद ही उन पे डाल रहे हो कि चलो चलते हैं पिकनिक पे. अगला बंदा बिजी भी हो सकता है, अगले बंदे का मन भी नहीं हो सकता, अगले बंदे की कोई और कमिटमेंट हो सकती है, उन्होंने कहीं और कोई काम करना है, या फिर उनको कुछ अपना कुछ भी काम हो सकता है. यू नेवर नो. सो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क. सो हाउ अबाउट, ये जो दो शब्द है वो, ये हमें क्या पता लगता है कि जो हम दूसरे इंसान की ना डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं जबकि उस पर थोप नहीं. राइट. सो व्हेन यू मैम आस्क समवन, मैम मैं एक क्वेश्चन में मतलब मैं सेंटेंस बनाया, मैं क्या सही बनाया या गलत में आप बताइएगा. जैसे बताओ. कि जैसे कि आई वांट गो, अभी जस्ट सोचा, आई वांट गो फॉर पिकनिक विथ मी. ओके, ये आप पूछ रहे हो कि उसको बता रहे हो? मतलब Because मेरा इससे दोनों, सेंटेंस ये ना कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये सही या अच्छा, गलत. मैं सेंटेंस ये बोलता नहीं हूँ फिर से, लेट्स गो पिकनिक फॉर विथ मी. नहीं नहीं, लेट्स गो टू अ पिकनिक टुगेदर. ठीक है ना. एंड आप उससे अगर आप उससे पूछ रहे हो आई वॉन्ट टू गो टू अ पिकनिक विद यू, अगर आप उसको बता रहे हो आई वॉन्ट टू गो टू अ पिकनिक विद यू, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ना जो आपने मुझे बताया, ये दोनों चीजों में यूज होता है. ये सब सवाल भी हो सकता है, एंड में सिर्फ चेंज होगा, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा या फुल स्टॉप आएगा. क्योंकि आपने जो मुझसे ये सेंटेंस पूछा, इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं. हम इसी सेंटेंस को हम पूछ भी सकते हैं और इसी सेंटेंस से हम अपना आंसर भी दे सकते हैं. जैसे कि अगले ने पूछा डू यू वांट टू गो टू अ पिकनिक विद मी, या फिर यही वाला क्वेश्चन, हाउ अबाउट कमिंग टू द पिकनिक एट द फुटबॉल क्लब. फिर आप आंसर दोगे आई वांट टू गो टू द पिकनिक विद यू. ठीक है ना. ये आप अपना आंसर दे रहे हो. और अगर आपने दूसरे से पूछना है तो आप पूछोगे डू यू वांट, आई वांट टू गो टू द पिकनिक विद यू, डू यू लाइक टू कम या वुड यू लाइक टू कम. ये दोनों चीजें तो आपको अपना स्टेट करना पड़ेगा कि आप आपका एक्सप्रेशन ऑब्वियसली तो आपको क्वेश्चन या आंसर के हिसाब से पता लग ही जाएगा जब आप बात कर रहे होगे. लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपको ये स्टेट करना बहुत जरूरी है कि आप एक आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर आंसर दे रहे हो तो एंड में फुल स्टॉप आएगा. ठीक है. ओके मैम. ऐसे और बाकी किसी को और कोई प्रॉब्लम है प्लीज फील फ्री. Yes, ma'am. हाँ Yes, जी, ma'am. कुछ Ma'am, could you जैसे tell मैम, about? एक सेकंड शिवानी को बोलने दो प्लीज. Yes, हेलो ma'am. Ma'am, could you tell about when we can use afraid words? अच्छा, अफ्रेड का. Yes, ओके, ma'am. ये आपने कौन से बॉक्स में से देखा था, कैन यू प्लीज टेल मी? Ma'am, at last, phrases for giving bad news. ओके ओके ओके. अच्छा, अब अफ्रेड का मतलब क्या होता है कि हम डरे हुए हैं, पर इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं डर डर के तुझे बता रही हूँ. नहीं, आपको अगले के लिए डर लग रहा है कि जब मैं उसको ये न्यूज सुनाऊंगी तो ऑब्वियसली उससे ये न्यूज अच्छी नहीं लगेगी. बिकॉज बैड न्यूज क्या होती है कि आप किसी को कोई बुरी खबर सुना रहे हो. तो अगला, आपको ऑब्वियसली आप किसी को बुरी खबर सुनाने जाओगे तो आपको खुद भी मन में थोड़ा सा डर तो लगता है ना कि आप अगले की फीलिंग्स के लिए डर रहे हो कि वो कैसे रिएक्ट करेगा या करेगा. राइट. सो आप ये लाइन तब यूज कर सकते हो, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज फॉर यू. सो आप ये लिख सकते हो आई वांटेड टू गो विद यू. बैड न्यूज जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बुरी न्यूज हो, किसी की फैमिली में ट्रेजेडी के बारे में बता रहे हो, कोई भी बुरी न्यूज हो सकती है. जैसे कि मैं तुम्हारे साथ आज पिकनिक में नहीं जा सकती, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज फॉर यू. आप ये कह सकते हो, सेंटेंस बताती हूँ, आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज फॉर यू, people who were coming to our party just cancelled it. अब अगला जब ये न्यूज सुनेगा क्या उससे अच्छा लगेगा? उसने पार्टी अरेंज की, उसने खाने का अरेंज किया, उसने पैसे लगाए, उसने ड्रिंक्स के लिए अरेंज किया, कोक वगैरह जितनी भी उसने मंगवाई, तो
ऑब्वियसली जब उसको ये चीज का पता लगेगा तो उसको तो नुकसान फील होगा, उसे अच्छा फील नहीं करेगा कि लोगों ने पार्टी में आने से पहले थोड़ा टाइम पहले कैंसिल कर दिया। सो वुड यू फील नाइस? आपको अच्छा लगेगा जब आप ये न्यूज सुनोगे? नहीं ना। सो ये हम तब बोलते हैं जब हमें पता है कि अगले को जब हम वो न्यूज सुनाएंगे तो उसका रिएक्शन अच्छा नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई यू यूज। और आई Yes, एम ma'am. अफ्रेड वाला लाइन आप मोस्टली तभी यूज करते हो जब आप कोई बुरी न्यूज सुना रहे हो। कभी कभार आपने किसी को कैंसिल भी करना हो ना, तब भी आप यूज करते हो आई एम अफ्रेड आई कांट गो विद यू टुडे, राइट? Okay, बिकॉज ma'am. यू नो Yes, अगला ma'am. इंसान जो है दे विल गेट इट। ओके, एनीवन एल्स विद Yes. एनी क्वेश्चन? Thank you, मैं ma'am. ये पूछ रहा हूँ, जैसे आज क्लास 66 डेज है। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। बोला हूँ जैसे 66 क्लास डे है तो मतलब 19 डेज पूरा हो जाएगा तो फिर स्टार्ट होगा कि नहीं? वो तो होएगा ही, वो तो क्लास चलती रहती है, बट आई एम नॉट सो वेरी श्योर बिकॉज मैंने ना अभी मैं आपके साथ शेयर करूँ, आई हैव आल्सो रिसेंटली जॉइन, सो आई तो डोंट नो जैसे द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है ना? तो ये तो आप कंप्लीट ये होने के बाद सवाल, मतलब आप एक ये क्लास जो 90 आप ये जी जो जब हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से पढ़ाएंगे कि दूसरा कोई पढ़ाएगा? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, सो कभी आई आल्सो डोंट नो बिकॉज एक्चुअली मैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे 90 डेज के लिए हूँ। उसके आगे का मैं भी आपको अपना भी पक्का नहीं बता सकती बिकॉज मैं भी अभी कॉलेज में हूँ, मेरे भी एग्जाम्स आ जाएंगे तो फिर मेरे लिए भी कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। उसके अच्छा, बाद आई विल ट्राई But I मतलब want to अभी continue. क्या कर रही हैं वन कॉलेज बाय में? वन। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, can I know which degree you are pursuing? आई एम परसुइंग BA इंग्लिश ऑनर्स First Okay, year ma'am. में? थर्ड। तभी मेरे लिए जरूरी है ना भाई, मैंने भी तब जो अपनी अर्चना, हाँ जी आपने हैंड रेज किया। Yes, ma'am. I have a question that how can new students take admissions in your batch? Okay, for that you need to download the app and go to the YouTube channel of क्या कहते हैं, फ्री कैंपस। फ्री कैंपस के ऐप पे ना लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद एनरोल करो, so you'll automatically be in the Yes, system ma'am. and for ठीक है, तो फिर आप उसमें आ जाओगे तो आपको लिंक्स वगैरह भी आ जाएंगे बिकॉज Ma'am, video is over. हाँ जी इसे फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करिए मैम, क्या बताइए अभी आप? क्या हुआ आप बड़ी मतलब अभी फास्ट क्या बोल रहे बता हो, रही थी एक बार? मुझे पता नहीं लगा आपने क्या कहा, थोड़ा Ma'am, माइक can से we get थोड़ा this information in written because your voice was not clear. अर्चना कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम योर माइक बिकॉज आपकी आवाज ना बहुत दब के आ रही, तो मैंने हेडफोन्स लगाए ना, मुझे तब भी पता नहीं लग रहा। सो कैन यू लिटिल बिट गो अवे फ्रॉम योर माइक एंड फिर बोलो, या फिर चैट पे लिख दो, मैं आपको चैट से आंसर दे दूँ। हाँ वो बेटर है, Ma'am, अगर आपको कोई, हाँ जी आप दोनों के पास बहुत सवाल है, डोंट can वरी I सवाल पूछो। can, हाँ can जी I हाँ जी ask you मुझे, your हाँ जी can I ask you your hobby? my hobbies, my hobbies Yes. is I like to watch, I like to read books, a lot of books, and I also like to go on walks. And your future goals, ma'am? My future goals, I want to be in a publishing company जहाँ पे books बनती है। Oh, गणेश मैं अभी बता रही थी क्योंकि मुझसे अर्चना ने पूछा था कि वो इस 90 डे के प्रोग्राम में कैसे आ सकती हैं, एनरोल कैसे कर सकती हैं, मैंने वही बता रही थी। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द ट्री कैंपस ऐप एंड यू हैव टू गो टू देयर यूट्यूब चैनल। Yeah, Archana, that's what I'm saying. That also you will have to ask my supervisors for that. I am not so sure about the whole process because I myself am very new in this. So yes. अच्छा, बाकी और कोई इस फ्रेजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसको फ्रेज समझ ना आया हो? yes, ma'am. I have one question. Okay, ask please. Like that, I am afraid I have got something sad to tell you. Last paragraph. Giving bad news. Okay, okay, okay. तो वही सेम चीज है ना, वो जो मैं आपको पहले बता रही थी कि आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट समथिंग सैड टू टेल यू।
बैड टू टेल यू भी हो सकता है, सैड टू टेल भी हो सकता है, वो आपकी न्यूज पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप ये जो खबर है दूसरे इंसान को बताओगे, सॉरी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो गुस्सा भी हो सकता है सुन के, वो रो भी सकते हैं। सो दैट इज वाई आप दूसरे इंसान के लिए थोड़ा डरा हुआ फील करते हैं, नहीं आप खुद डरे हुए हो कि मैं बड़ा डर डर के बता रही हूँ। नो, दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे अफ्रेड का मतलब सीधा नहीं कि आप डरे हो, इन द सेंस कि आप डरे हुए हो लेकिन दूसरे इंसान की फीलिंग्स के लिए, बिकॉज आपको उस इंसान की कद्र है, आपको उस इंसान की केयर है, सो यू डोंट वांट दैट पर्सन टू गेट हर्ट, राइट। अब जो हमारे like that, पास के, ma'am, like that, my father's mothers, मतलब डोंट से कुछ फादर्स नहीं, एंड मतलब मदर्स, से फादर एंड मदर। एस मत लगाओ बीच में, क्योंकि सबके फादर एक ही होते हैं ना, दो तो नहीं होते। यूज फादर एंड मदर। okay, और कुछ किसी ने but मैम, पैटर्न के अलावा किसी का yes सवाल मैम, नहीं है? हाँ जी मैम, मैम, in the second last paragraph, ma'am, a sentence I'd like to know. So, ma'am, I'd is a contraction of I had or I would. वेट, कौन सा सेकंड लास्ट? नो वाला कि आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन? Ma'am, I'd अच्छा, like आई to know लाइक टू, wala. अच्छा आजा, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक। Okay, ma'am. So, what was the what will the contraction of I had? आई हैड का, आई हैड का कोई नहीं होता, आई हैड तो छोटा ही है ना, आई हैड ही, क्योंकि वुड थोड़ा लंबा वर्ड होता है ना, इसीलिए उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। वुड हो गया, Okay, ma'am. या जैसे कांट, कैनॉट का कांट बनाया हुआ है, मस्ट नॉट का मसंट बनाया हुआ है, जैसे कि MUST N अपोस्ट्रोफी T। तो हैड ऑलरेडी छोटा है, तो उसको आप क्या ही और छोटा कर लो, राइट। सो आई हैड का आई Okay, हैड ma'am. ही। Yes, ma'am. And ma'am, when we should use had or have means to हैड we और can हैव, it is similar something. I'm confusing. हैड yes, और ma'am, हैव जो I'm है confused. आपका, nice हैड और question. हैव जो मेरे को उसका जवाब तो देने दो। सो आपको भी टर्न देती हूँ। आई हैड एंड आई हैव का है कि जब आपने कोई काम फिनिश कर लिया, पास्ट में है लेकिन रिसेंट पास्ट है, यानी कि जैसे कि कल का दिन या परसों का दिन, जब आप ज्यादा हो जाता है ना तो फिर उसमें हैड एंड हैव, जैसा हैड बीन आ जाता है। लेकिन जब Yes, अभी ma'am. आपका कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है ना, तो अब आप हैड एंड हैव यूज करते हैं। हैड हो गया आई, शी, हिम, ही के लिए। हैव Yes, हो गया ma'am. दे के लिए, ठीक है ना। दे मल्टीपल के साथ हो जाता है कि दे हैव कम फ्रॉम द, दे हैव कम फ्रॉम अ वॉक, दे Yes, हैव ma'am. कम होम, दे हैव बीन, दे हैड, कितना हैड भी हो सकता है दे के साथ, ऐसा नहीं है, Okay, ma'am. बट मोस्टली केसेस में यू यूज दे के साथ, क्या कहते हैं, दे हैव, एंड बाकी दो तीनों के साथ। ठीक है, आप Okay, ये तो नहीं ma'am. ना बोलोगे वो भी ठीक है। एनीवन, हाँ जी, प्रेजेंट के पास सवाल था। Thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। अब डोंट वरी, मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आपको सारा कराऊंगी, डोंट वरी। आई हैव मैंने आप लोगों की थोड़ी सी असाइनमेंट भी तैयार की हुई है। सो अपने ना जब भी लाइक कभी कभार ना पेपर और पेन हाथ में रख लिया करो, जस्ट फॉर काइंड ऑफ नोट्स ले लिए कभी कभार। सो डू कीप अप ये क्या ना, कॉपी एंड पेन विथ यू। और Yes, मैं ma'am. कभी कभार नए नए वर्ड्स Okay, बोलती हूँ, ma'am. उनका मीनिंग बताती हूँ, तो वो भी नोट डाउन कर लिया करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। आपके अलावा और किसी ने सवाल नहीं पूछना मुझसे? तो ऐसे मुझे लग रहा है कि हाँ जी, Hello, ma'am. हाँ जी, हेलो। आपकी आवाज मैंने पहली बार I सुनी had है। question. या Ma'am, third paragraph phrases for saying no में जो ये वाला है. कौन सा वाला? Apologist, but I can't make it. Okay. इसका meaning. सो हाँ, मैं बताती हूँ। अपॉलोजी, अपॉलोजी का मतलब होता है किसी को सॉरी मांगना। आई अपोलोजाइज, माई अपॉलोजीज, यानी कि आई एम सॉरी बोलने का डिफरेंट तरीका, लेकिन अपॉलोजीज हो गया कि आप थोड़ा ज्यादा लाइक सॉरी फील कर रहे हो। सॉरी फील करने के लिए आप अपॉलोजीज लिख सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट आई एम सॉरी एवरी टाइम। कहते हैं ना, अपॉलोजी जो है वो आई एम सॉरी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आपको जैसे कि आपको अगर आपका आई एम सॉरी बोलने का मन नहीं है, तो आप आई अपोलोजाइज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो अपोलोजीज बट आई कांट मेक इट, यानी कि मैं माफी मांगती हूँ लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। आई कांट मेक इट यानी कि मैं जो आपने मुझे काम दिया या फिर आपने मुझे कहीं बुलाया है, मैं वहां नहीं आ पाऊंगी या फिर मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। सो अपोलोजीज, आई कांट मेक इट। आई कांट यानी कि आई कैन नॉट मेक इट, ठीक है ना। कांट आ गया ना शॉर्ट फॉर्म, कैन नॉट की।
सो अपॉलॉजीज बट आई कांट मेक इट, यानी कि आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती या मैं ये काम नहीं कर सकती. ओके Okay, ma'am. Thanks. नो प्रॉब्लम. Okay, so it's 6 o'clock. Hanti Kundan raised hand. Yes. Yes, Kundan, you raised hand. Okay, no. चलो. और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Because 6 o'clock हो गए, so we'll be ending the session. And मैं कल नहीं लगा पाऊंगी क्लास. I'll be there with you on Monday. Monday को मैम हम अपनी टुमारो स्टोरी टेलिंग. क्लास में मैम टुमारो क्लास शायद लगे, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगी. वो आपको अपनी जहाँ पे लिंक आता है वहां से पूछ तो मतलब लीजिएगा. मैम कल क्लास, कल संडे है तो कल नहीं चलेगा? कल संडे कहाँ है? कल फ्राइडे है. सैटरडे अरे संडे सॉरी, क्लासेस नहीं होती. हाँ जी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है. मैं सिर्फ अच्छा कल के लिए कह रही हूँ. सैटरडे संडे आप लोग मत आना. सैटरडे संडे लाइक हर सैटरडे संडे इट्स अ हॉलीडे. सो फ्राइडे के लिए मैं कल आपकी शायद क्लास मैं तो नहीं करा पाऊंगी बिकॉज आई एम बिजी समवेयर. एंड मे बी आपकी क्लास कोई और ले ले. आई एम नॉट श्योर. यू हैव टू आस्क इन द ग्रुप जहाँ पे आपको लिंक आता है. आप लोग अपना लिंक कहाँ से ज्वाइन करते हो? मैम फ्रॉम ऐप. अच्छा, ऐप से मैम ज्वाइन करते फ्रॉम हो? ऐप. यस मैम. अगर जी मैम, आपने जी मैम. अगर App हाँ से. तो फिर आई गेस फ्रॉम कल ऐप लिंक क्लास. ओके ओके, आई गॉट इट. कल तो फिर अगर ऐप से करते हो तो कल दे वोंट बी अ क्लास, आई थिंक सो. एंड मंडे को हम मिलेंगे. मंडे को हम लोग स्टोरी टेलिंग को अपना जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था हम उसको वहां से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे. ओके. मैंने कल जो आप ओके लोगों को 5 C's पढ़ाए थे वो 5 C's क्लियर है? मैम यस्टरडे आई वाज एब्सेंट. ओके, yesterday you were absent. ओके, तो प्लीज एब्सेंट मत हुआ करो बिकॉज फिर आपका वो हिस्सा मिस हो जाएगा और फिर मैं अगर दोबारा बताने हो तो उसमें भी आधा घंटा निकल जाता है. वैसे ही हमारी क्लास 1 घंटे की होती है. यस मैम. कभी कभार. मैम आई विल वॉच द वीडियो इन फ्रॉम यूट्यूब. ओके ओके, दैट्स यस परफेक्ट. मैम. सो ओके, सो आप लोग वो करो. आप लोग पुराना ये सॉरी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो. आप लोग को आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी डू फील टू आस्क मी. हम यही क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आके 5 मिनट थोड़ा कोई सवाल से बोलोगे. जैसे मैंने आपको एक्टिविटी बताई, सो ये एक्टिविटी जरूर ट्राई करना. ओके. अपने बारे यस मैम. में 10 लाइनें लिखो. 10 लाइनें बोल के प्रैक्टिस करो. पहले आप मुझे चेक करा लेना. कोई प्रॉब्लम उसमें होगी तो आई टेल यू, नहीं हुई तो उससे प्रैक्टिस करो. कम से कम आप अपनी इंट्रोडक्शन देने में तो परफेक्ट हो जाओगे ना. यस मैम. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम बाकी टॉपिक्स को पकड़ेंगे. ठीक है जी. ओके मैम. चलो, Okay, then ma'am. we'll end the meeting for today. Okay, so bye everyone. I'll meet you on Monday. Okay. Same to you, Bye ma'am. मैम. थैंक यू मैम. Bye.